آغاز پھر محمد حسین سے کرتے ہیں۔ پی ٹی آئی کا کارکن خیبر پختونخوا کے ضلع خیبر سے چلا راولپنڈی آیا اور جی ایچ کیو کے سامنے اس نے فائرنگ کر دی، جس سے ایک پاک فوج کا سپوت شہید ہو گیا اور 2 زخمی ہو گئے۔ یہ نوجوان بھی مارا گیا۔ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ ذہنی طور پر مستحکم نہیں تھا۔ بہرحال وہ مستحکم تھا یا نہیں تھا، یہ کوئی جواز نہیں بنتا کہ وہ یہاں پہ آیا اور اس نے ایسا حملہ کر دیا۔ اور پھر جس طرح سے طارق صاحب کی طرف سے کل کہا گیا اور تحریک انصاف کو اس پر مورد الزام ٹھہرایا گیا، اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے طلال چودھری کی طرف سے بھی یہی موقف اپنایا گیا۔ ان کی طرف سے کہا گیا کہ پی ٹی آئی نے یہ بتا دیا ہے، بتانے کی کوشش کی ہے کہ 27 ستمبر کو بھی ہم ایسا ہی کریں گے، ایسا ہی کر سکتے ہیں۔ ان کے ساتھ ساتھ دیگر مسلم لیگ نون کے اسی طرح کے ہارڈ لائنر قسم کے وزیر بھی ایسا ہی تحریک انصاف کے حوالے سے کہہ رہے ہیں۔ تو ناظرین، اگر ایسا ہے کہ تحریک انصاف کی بطور پارٹی اس بندے کو پشت پناہی حاصل تھی، اس بندے کو انہوں نے یہاں پہ بھیجا، اگر یہ ثابت ہو جاتا ہے تو پھر تحریک انصاف پر پابندی لگانے میں کوئی امر مانع نہیں ہونا چاہیے۔ ایسی پارٹی، کوئی بھی پارٹی، تحریک انصاف یا کوئی بھی پارٹی قابل قبول نہیں ہو سکتی جو پاکستان میں دہشت گردی کو فروغ دیتی ہوئی نظر آئے۔ لیکن ہم نے دیکھنا یہ بھی ہے کہ یہ وزراء یہ کتنے سچے ہیں، بلکہ سچ ان کے قریب سے بھی ہو کہ نہیں گزرا۔ ہو سکتا ہے کہ دیگر باتوں میں کوئی نہ کوئی یہ سچ بول دیتے ہوں، لیکن تحریک انصاف کے حوالے سے یہاں پہ تحریک انصاف کو اپنے پس سے پوچھ ڈالنا ہے، وہ اس کے خلاف انتقامی کارروائی کرنی ہے، اس کو دبانا ہے، تو یہ کسی بھی حد تک جھوٹ بولتے ہوئے جا سکتے ہیں۔ لگتا ہے کہ مسلم لیگ نون کے وزراء پیر باندھ کر جھوٹ بولتے ہیں، جس طرح سے ان کی طرف سے کچھ وزراء کی طرف سے یہ جھوٹ بولا گیا کہ تحریک انصاف اس میں بطور پارٹی ملوث ہے۔ اگر تحریک انصاف اس میں بطور پارٹی ملوث ہے اور ان کے پاس ثبوت ہیں تو تحریک انصاف کو یہ کالعدم قرار دینے میں ایک لمحہ بھی ضائع نہ کرتے۔ عدالتیں پہلے ہی تیار بیٹھی، جیسا کہ فیڈرل کورٹ ہے جس کو آئینی عدالت کہتے ہیں، اس کے چیف صاحب تو وہ تو انتظار میں ہے کہ تحریک انصاف کے خلاف کوئی کیس آئے، ہم سنیں اور اس کا فیصلہ جس طرح سے کہا جاتا ہے، جس طرح سے سوچا جاتا ہے، سمجھا جاتا ہے، اس کے مطابق کر دیا جائے۔ جیسا کہ مسلم لیگ نون کے وزیر پاؤں باندھ کر پیر جوڑ کر کوڑ بولتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، کوڑ کا مطلب ہی جھوٹ بولنا ہے، اسی طرح سے ان کے ایک وزیر کی طرف سے مشیر، بلکہ اسے کہیں کہ وزیر اعظم صاحب کے مشیر اعلیٰ ہیں، عظیم مشیر ہیں، اور مشیر اعظم وہ ہیں حذیفہ رحمان صاحب، ان کی طرف سے بھی پاؤں جوڑ کے کوڑ بولا گیا ہے۔ جب ایک پروگرام میں ان سے پوچھا گیا کہ محسن نقوی نے جس طرح سے کہا ہے کہ لیب سسٹم کر چکا ہے، تو ان کی طرف سے کہا گیا کہ انہوں نے شہباز شریف کے حوالے سے یا پھر مرکزی حکومت کے بارے میں نہیں کہا، انہوں نے کہا کہ میں 100% شور ہوں، مجھے 100% یقین ہے کہ یہ انہوں نے خیبر پختونخوا حکومت اور سندھ حکومت کے بارے میں کہا ہے۔ تو ذرا سنیے کہ ان کی طرف سے کیا کہا گیا، اور یہ منصور علی خان کا پروگرام تھا۔ نہیں ایسے نہیں۔ محسن نقوی صاحب نے جو کولیب سسٹم کی بات کی، ان کی مراد اس سندھ سے تھی جس کراچی میں 20 سال سے ایک جماعت کی حکومت ہے، جو کراچی دنیا کی کئی معیشتیں چلا سکتا ہے، لیکن وہ اس کراچی کے اندر جو انفراسٹرکچر کا حال ہے، جو روڈ نیٹ ورک کا حال ہے، جو میونسپل اداروں کا حال ہے، وہ مجھ سے زیادہ آپ کو پتا ہے۔ انہوں نے اس کے پی کے کی بات کی ہے جہاں پر 13 سال سے ایک ہی جماعت کی حکومت ہے، ان 13 سالوں میں ایک ٹیچنگ ہاسپٹل پورے کے پی کے میں نہیں بنا۔ جس کے پی کے کے اندر میٹرو بنائی گئی تو 105 ارب کی میٹرو بنی، جبکہ پنجاب نے 105 ارب میں 3 میٹروز بنا دی۔ تو بات یہ ہے کہ کولیپس کی بات تو درست ہے، لیکن کولیپس کہاں کا سسٹم کی ہے، یہ کس صوبے کا کی ہے، اس پر ذرا یعنی آپ میں کلیئر کر دیں، آپ کا یہ کہنا ہے کہ محسن نقوی صاحب جو کولیپس کرنے کی بات کر رہے ہیں وہ سندھ اور کے پی کی بات کر رہے ہیں، پنجاب کی بات؟ جی 100%۔ کیونکہ دیکھیں پنجاب میں تو نقوی صاحب نے 9 مہینے بہترین وزیر اعلیٰ نگران کے طور پر کام کیا۔ اس کے بعد مریم نواز صاحبہ نے اپنے والد اور اپنے چچا کی جو فٹ پرنٹس ہیں ان کو فالو کیا۔ تو یہ تو اندھے کو بھی پتہ ہے کہ کے پی کے اور سندھ کے اندر کیا حال ہے۔ آپ نے ویسے حذیفہ صاحب میری کم عقلی کے لیے میں معذرت، لیکن آپ نے ابھی تک محسن نقوی صاحب کی منہ سے مریم نواز صاحبہ کی کوئی تعریف سنی ہے؟ ویسے پوچھ رہا ہوں۔ میں نے بے شمار دفعہ مریم نواز صاحبہ کے کام کی
یہ तारीफ वाली बात तो ऐसे ही इसमें आ गई। जिस तरह से हुज़ैफा रहमान की तरफ से कहा गया कि 100% उन्होंने वही बात की थी, इसका जवाब अब्दुल कादिर मंदूखैल साहब की तरफ से दिया गया है। ये अब्दुल कादिर और हैं और वो वाले और हैं जो इमरान खान के पेशाब से शराब बरामद किया करते थे, वो अब्दुल कादिर पटेल हैं और ये अब्दुल कादिर मंदूखैल हैं। उनकी तरफ से जो कुछ कहा गया वो भी आपके सामने रखते हैं। इसी तरह से इनकी तरफ से ये भी कहा गया, हुज़ैफा रहमान ने जिस तरह से ये पाँव बांध कर झूठ बोला है कि उनके सारे के सारे इशारे खैबर पख्तूनख्वा और सिंध हुकूमत की तरफ से कि वहाँ पे सिस्टम कोलैप्स हुआ है। तो उन्होंने ये भी कहा था कि वज़ीर आज़म साहब 12 घंटे तक काम करते हैं, अगर वो 18 घंटे काम भी करें तब भी सूरत हाल बेहतर नहीं हो सकती। तो ये खैबर पख्तूनख्वा में कौन सा वज़ीर आज़म आ गया, सिंध में कौन सा वज़ीर आज़म आ गया। इनकी तरफ से ये भी कहा गया कि इमरान खान को पेशकश की गई हुकूमत की तरफ से या जिसकी भी तरफ से कि आप मिडल ईस्ट चले जाएं, तो इमरान खान ने कहा कि नहीं, मैंने मिडल ईस्ट नहीं जाना बल्कि मुझे यूरोप जाने दिया जाए। तो इस पर बात ना बन सकी, ये भी इनकी तरफ से कहा गया। मंदूखैल ने इस पर क्या कहा वो भी आपके सामने रखते हैं। मेरे ख्याल में मंसूर अली खान साहब जो ज़फ़र रहमान साहब ने कहा कि आपका हाथ और मेरे गिरबान में होगा, अगर इसी बात पे आ जाए तो मेरे ख्याल में हजारों लोगों के हाथ ज़फ़र रहमान साहब के गिरबान में होंगे। क्योंकि एक शो में मेरे साथ उन्होंने कहा कि हमने इमरान खान साहब को ऑफर की है कि आप मिडिल ईस्ट के किसी मुल्क में चले जाए, तो इमरान खान साहब नहीं, मुझे आप यूरोप या अमेरिका भेज दें। जब एंकर ने सवाल किया कि ये बातें आपको कैसे पता, ये ऐसे नहीं है क्योंकि मेरे को ये कहने पर हुज़ैफा रहमान की तरफ से शोर शराबा बर्पा कर दिया गया। बहरहाल उनको एंकर की तरफ से खामोश करवाया गया। तो मंदूखैल ने अपनी बात जारी रखते हुए क्या कहा, अरे मैं शो में बैठा हूँ, ये बिल्कुल नहीं, मैं बिल्कुल यार खुदा की कसम झूठ की और फरेब की तो सियासत इन्हीं से सीखे कोई। अच्छा जी, मैं वो शो आपको भेज दूंगा, क्लिप मेरे पास पड़ा हुआ है। जो उन्होंने ये कहा कि हमने इमरान खान को ऑफर किए मिडिल ईस्ट किसी मुल्क में, तो एंकर ने बोला और इमरान खान ने बोला नहीं, मुझे यूरोप या अमेरिका भेज दिया। तो एंकर ने सवाल किया कि आपको कैसे पता, बोले हमारे पास ऑडियो टेप है। चैलेंज करता हूँ ज़फ़र रहमान मेरी बात को झुठला दे, और फिर ये मेरे गिरबान के हजारों पीटीआई के लोगों के हाथ भी तेरे गिरबान में होंगे। खैर आपके ऊपर क्या फर्क पड़ता है। फिर दूसरी बात, वो तर्जुमानी जो कर रहे हैं या उसकी तशरीह कर रहे हैं मोहसिन नकवी साहब, ये कोई अक्ल का अंधा बता दी मुझे कोई ये बात कि मोहसिन नकवी है शहबाज शरीफ काबिले का, और वो उनको पता है मुराद अली शाह की और सुहेल अफरीदी की काबिना के। कोई अक्ल वाली बात कर, खुदा का वास्ता पूरी दुनिया को देख रही है। और फिर मोहसिन नकवी साहब ने जो बातें की है, ये बात भी क्या मुराद अली शाह और सुहेल अफरीदी के लिए कही कि शहबाज शरीफ जो ना अगर 12 घंटे काम कर रहे हैं, वो अगर 16 घंटे भी कर रहे तो होने का कुछ नहीं। यानी एक निकम्मा वजीर आजम है और एक नायब वजीर आजम है, वो छोटे बच्चे की तरह जो टीचर 2 थप्पड़ भी मारे और कलम दवा तख्ती उसको गिरा दे, कोने में बिठा दे, फिर उस निकम्मे स्टूडेंट ने कुछ नहीं लिखना, ये उसका अल्फाज है। मतलब मैं तशरीह ये ले रहा हूँ। जी, तो मंदूखैल का आपने जवाब सुन लिया। इससे आपको ये पता चल गया कि हुज़ैफा रहमान साहब किस तरह से पैर जोड़ के कूड़ बोलते हैं, झूठ बोलते हैं। तो आसमा शराजी साहबा की तरफ से भी एक इंकशाफ किया गया है। जिस तरह से हुज़ैफा रहमान ने बकौल मंदूखैल के एक प्रोग्राम में ये कहा कि इमरान खान को हमने पेशकश की कि आप मिडल ईस्ट चले जाए, इमरान खान ने कहा नहीं, मुझे यूरोप या अमेरिका पहुंचाया जाए। इसी तरह से आसमा शराजी साहिबा की तरफ से भी एक इंकशाफ किया गया है कि किस तरह से इमरान खान को पाकिस्तान से बाहर भिजवाया जा रहा है। तहरीक इंसाफ वाले किस तरह से ये बात कर रहे हैं, सुनिए। आसमा शराजी ने किस तरह से इमरान खान के पाकिस्तान से बाहर जाने का इंकशाफ किया है। खबर भी आ रही है कि कोई खुफिया मुलाकात जो है वो इमरान खान साहब के साथ जेल में हुई है, और उस मुलाकात के बाद जो है वो मुख्तलिफ चहमगोइयाँ इस्लामाबाद के अंदर हो रही हैं कि शायद इमरान खान साहब के जो उनकी बीमारी की इत्तलात है उसके बाद उसमें तेज़ी आ गई है, और उनकी बीमारी की खबरों के बाद शायद उनको मुल्क से बाहर भिजवाया जाए और माइनस इमरान जो है वो यहाँ पर जो पॉलिटिकल एक्टिविटी है उसका आगाज़ किया जाए। तो आसमा शराजी साहिबा की तरफ से कहा गया कि पीटीआई के अंदर से ये बातें बाहर आ रही हैं कि इमरान खान को शायद पाकिस्तान से बाहर भिजवाया जाए। तो नाज़रीन, इस हवाले से हमारा तजज़िया और राय ये है, जिस तरह से हमने इमरान खान को देखा है, इमरान खान के पाकिस्तान से बाहर जाने का कोई इम्कान नज़र नहीं आता। इमरान किसी भी तौर पर पाकिस्तान से बाहर नहीं जाएंगे, वो यहीं पर रह के हालात का जिस तरह से मुकाबला कर रहे हैं इस तरह से मुकाबला करेंगे। बहरहाल आसमा शराजी साहिबा की तरफ से कोट किया गया है कि तहरीक इंसाफ के अंदर से ये बातें हो रही हैं। बशार अल-असद
साहब को सजाए मौत सुना दी गई है। ना सिर्फ उनको सजाए मौत सुनाई गई है बल्कि उनके भाई आतिफ को भी सजाए मौत सुनाई गई है। इस मौके पर बशार अल असद के भाई अदालत में मौजूद थे, जबकि बशार अल असद साहब अपने मुल्क से फरार होकर रूस चले गए थे, वहीं पे वो मौजूद हैं। यहाँ पे हमने बात ये करनी है कि जज साहब की तरफ से जिस तरह से दोनों भाइयों को सजाए मौत का हुक्म सुनाया गया है, तो जज साहब उस मौके पर क्या सोए हुए थे या फिर बेज़मीरी के झूले पर झूले ले रहे थे। जिन दिनों में बशार अल असद साहब हुकूमत में मौजूद थे वो 24 साल तक इक़्तिदार में रहे। उनके इक़्तिदार का खात्मा होता है तो ऐसी अदालतें और हुकूमतें फिर एक्शन में आ जाती हैं और ऐसी सजाएं सुनाती हैं जो उनके दौर में इनके लिए नामुमकिन था। लगता है कि वहाँ पे भी जिस तरह से पाकिस्तान में जज मौजूद हैं, इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतों में जजेस हैं और उनकी तरफ से फैसले सुनाए जाते हैं, तहरीक इंसाफ का कोई मुल्ज़म उनके सामने दहशतगर्दी के तौर पर पेश किया जाए, जिसमें साबिक़ वज़रा भी हैं, मुशीर भी हैं और दीगर बड़े बड़े सियासतदान भी हैं, और दहशतगर्दी के मुकदमात उन पर दर्ज हुए और उसमें उन्होंने सजाएं सुना दी। लेकिन जैसे ही उनके सामने कोई असल दहशतगर्द आता है तो मुकदमा सुनने से इनकार कर देते हैं। तो ऐसे जज साहब वहाँ पे भी बैठे, जबकि उनको किसी किस्म का कोई खौफ नहीं है इंसाफ करते हुए, तो फिर वो दलेरी के साथ इंसाफ कर रहे हैं। लेकिन जिस मौके पर बशार अल असद की तरफ से वो सारा कुछ किया जा रहा था जो उनको सजाए मौत का हकदार करार देता, उस वक्त ये खामोश बैठे हुए थे। कश्मीर के हवाले से बात कर लेते हैं। वहाँ पे 3.5 मरहलों के इंतखाबात मुकम्मल हो गए हैं, जबकि आधे मरहले का इंतखाब अभी होना है। 3.5 मरहलों में ये हुआ है कि आज़ाद कश्मीर में होने वाले इंतखाबात में 38 सीटों पर मुकम्मल इंतखाब हुआ है, जबकि अभी 7 पर इंतखाब होना है। और इन 38 में से मुस्लिम लीग नून के हिस्से में आई हैं 24 नशिस्तें, जबकि पीपल्स पार्टी के हिस्से में आई हैं 12 नशिस्तें, जो 24 का आधा है, और 1 सीट दस्तोबाजू पार्टी के हिस्से में आई है। और ये साहब हैं साजिद अब्बासी साहब। इस तरह से वहाँ पे पार्टी पोजीशन कुछ इस तरह से बन जाती है कि मुस्लिम लीग नून पहली पोजीशन पर, पीपल्स पार्टी दूसरी पोजीशन पर और दस्तोबाजू पार्टी तीसरी पोजीशन पर आई है। हमने बात करनी थी कि किस तरह से सदर ट्रंप साहब अपने जहाज से उतरे और छलांग लगाकर वो एक ट्रक में बैठ गए। ट्रक कौन सा था? ये कैटरिंग का ट्रक था, जिसमें चूहे भी होते हैं, काकरोच भी होते हैं। ये सदर के लिए तैयार किया गया ट्रक नहीं था, बल्कि इमरजेंसी तौर पर सदर साहब को उसमें मुंतकिल किया गया था। और ये तुर्की में एक इजलास के लिए आए थे। ईरान की तरफ से बाकायदा धमकी ये कहते हैं कि दी गई थी कि सदर ट्रंप को हम नहीं छोड़ेंगे, ये इनकी तरफ से कहा गया। और फिर इन्होंने अपने आप को बचाने के लिए एक जहाज में सवार होते हैं और ट्रक उसके करीब लाया जाता है, जिसमें वो खुफिया तरीके से चोरी से बैठ जाते हैं। ट्रक को दूसरे जहाज के करीब ले जाया जाता है। लगता ये है कि ये ट्रक जहाज में सामान उतार रहा है या सामान उससे ले रहा है, और ट्रंप साहब नए जहाज में बैठते हैं तो बरतानिया चले जाते हैं। ये है साहब बहादुर, बड़े बहादुर ट्रंप साहब, जो किसी से नहीं डरते, लेकिन ईरान की धमकी से डर कर वो जहाज जिस तरह से तब्दील करते हैं, बड़ी खुशी के साथ वो चूहों के साथ, काकरोचों के साथ सफर करते हैं। तो नाजरीन, अगर ये जहाज ट्रंप के लिए तैयार करवाया गया होता, सदर के लिए तैयार करवाया गया होता, तो इसमें गद्दे और सोफे बिछे हुए होते, उसमें कुछ और ना होता। लेकिन ये चूंकि कैटरिंग का ट्रक था जिसमें चूहे भी होते हैं, ना सिर्फ यहाँ पे चूहे होते बल्कि स्टोरों में भी खाने पीने की जहाँ पे चीजें होती हैं वहाँ भी चूहे और काकरोच होते हैं, और घरों के किचन में भी चूहे और काकरोच होते हैं। तो ट्रंप साहब ने बड़ी खुशी के साथ अपनी हिफाजत के लिए ऐसे ट्रक में सफर किया और दूसरे जहाज में बैठ गए जो उनको बरतानिया ले गया। इसके साथ इजाजत दीजिए, अल्लाह।